Hello student, in today's session we'll learn some of the aspect of couple as well as we'll do one or two numerical in today's session. In previous session we have learnt about the aspect of moment of force, and before that we also learnt about Newton's law, Newton's first, second and third law, and we have also learnt about some of the examples of moment of force. Then that how a particular force acting on any particular body can change the state of rest of a particular body, or it can change the state of uniform motion of a body, and that particular force can also rotate that particular body. Okay, so the force can have a different so force can have a turning effect also. Okay, we have already learned about all these things in our previous chapters, in our previous classes. Okay, so in today's session we'll learn about the couple. Let us discuss what is couple first. As you can see in the definition, the couple is two equal and opposite parallel forces not acting along the same line forms a couple. What does it mean? Suppose I take one particular object just like this, and a force is acting on it, means कि दो force इस पे act करेंगे of the same equal magnitude. यहाँ से आप 10 न्यूटन लगाओ और it can rotate at this particular point. इधर ऊपर से 10 न्यूटन लगाओ, नीचे से 10 न्यूटन लगाओ. What will happen? It will rotate like this. ये पूरा rotate कर जाएगा. So the force of equal magnitude, but when they are acting along the two different lines and they are parallel forms a couple. इसका मतलब क्या हुआ? अगर 10 न्यूटन इधर से लगा रहे हो, 10 न्यूटन इधर से लगा रहे हैं, ठीक है? Although the net force acting on this particular body is 0. ऊपर से 10 न्यूटन, नीचे से 10 न्यूटन. So net force acting on the body is 0. But they are not acting. They are not along the same axis. Same axis पे नहीं लग रहा, same line पे नहीं लग रहा है, ठीक है? सेम एक्सिस पे तो लग सकता है, सेम लाइन पे नहीं लग रहा है, ठीक है? सपोज करो मैं 10 न्यूटन इधर से लगाता और इसके एग्जैक्ट नीचे 10 न्यूटन लगा देता, ठीक है? तो ये बॉडी रोटेट नहीं करता, ठीक है? अगर ये मिडल पे आपने फोर्सेस लगाए हैं, ऑल्दो अगेन नेट फोर्स इज 0, बट दिस बॉडी वॉन्ट रोटेट, ठीक है? सो आपको याद रखना है, अगर कोई इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस लगेंगे, ठीक है, एंड दे आर parallelly acting on that particular object and they are along the same line, so they will constitute a couple, ठीक है? Just like एक देखो ये as you can see in this PDF, ठीक है, आपने फोर्स ऊपर से लगाया, ठीक है? This is a rotating portion of this rotating point, ठीक है? तो this force will produce anti-clockwise rotation and it is anti-clockwise moment of force and it is equivalent to R cross F, ठीक है? अगेन इधर ये वाला फोर्स, दिस विल आल्सो प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन R क्रॉस F, ठीक है? ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएगा. सो एक बॉडी पे एक नेट मोमेंट ऑफ फोर्स आ गया, एंड दिस मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ दिस एंड दिस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, सो यू विल एड अप. So RF and RF, it will get 2 RF, ठीक है? So this would be the net moment of force acting on that particular body. Same इसका एग्जांपल आप पहले भी पढ़ चुके हैं, that is steering wheel, टर्निंग ऑफ अ स्टीयरिंग व्हील, ठीक है? स्टीयरिंग व्हील में आपने दिस स्टीयरिंग व्हील पे आप फोर्स लगाते हैं जस्ट लाइक दिस, एज यू कैन सी इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायग्राम. फोर्स इधर लग रहा है in forward direction as well as in backward direction, ठीक है? So these forces are acting on the steering wheel, which is an object, and they are acting along two different they are acting along the same line, but they are in opposite direction and they are parallel, ठीक है? So this will rotate this particular steering. This particular force will rotate it in the clockwise direction. This force will also, the backward force will also rotate the steering wheel in the same direction. So these two, the moment of force would add up, ठीक है? Okay, and same is the case for tightening of any particular jar with its cap. Cap से आप इसको टाइट करेंगे, इधर से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, इधर से फोर्स लगाएंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फोर्स टाइट करने के लिए एनी पर्टिकुलर जार को, ठीक है? with its cover, so उसे ओपन करने के लिए. So this is also one of the example of couple, ठीक है? So आपको
याद रखना है कपल में दो फोर्सेस लगेंगे हमेशा बॉडी पे एंड दे विल प्रोड्यूस नेट इफेक्ट. देयर नेट इफेक्ट वुड बी such that it will produce rotation of a body. Okay, हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक पर्टिकुलर बॉडी पे अगर रोटेट कब करता है, वो ये पर्टिकुलर बॉडी रोटेट तभी करेगा जब इस पर्टिकुलर बॉडी पे नेट मोमेंट ऑफ फोर्स रहेगा. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखें आप, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स. इफ अ फोर्स प्रोड्यूसेस नेट मोमेंट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी देन द बॉडी विल रोटेट. ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पे अगर नेट मोमेंट ऑफ फोर्स लगता है तभी वो रोटेट करेगा, अदरवाइज रोटेट नहीं करेगा. ठीक है, ओके, एक और एग्जांपल से देखते हैं हम. सपोज आई हैव टेकन अ मीटर रूल. मीटर रूल क्या होता है भाई? मीटर रूल एक वही रूलर है, ठीक है, जिसपे मार्किंग होती है 0 से 100 सेंटीमीटर तक, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. ठीक है, तो उस पर मार्किंग होगा 0 से लेकर 100 तक. ठीक है, सो अगेन इफ अ मीटर रूल, यू हैव टेकन अ मीटर रूल, तो इसका मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होगा? हमेशा याद रखना इसका मास, टोटल मास इसके मिडिल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है. ठीक है, अगर ये पूरा मीटर का रूल है ऑफ 0 to 100, तो इसका मास, सारा मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होगा? एट इट्स मिडिल पॉइंट. तो रॉड का हमेशा मास, द होल मास is concentrated at its middle. It is the point if it is freely suspended. अगर सस्पेंड कर दो आप, ये इतने वेट से नीचे जाना चाहेगा एंड आप इसको नीचे ना जाने के लिए आप इसके जो इसका सारा मास जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड था वहीं पे आप एक इसका बैलेंसिंग पॉइंट रखेंगे, तब ये बैलेंस्ड होगा. ठीक है, तो वेट और ये जो नीचे फलक्रम लगा है, दिस इज बैलेंसिंग पॉइंट, जो या बैलेंसिंग ऑब्जेक्ट जो लिया है, दैट इज कॉल्ड फलक्रम. ठीक है, सो ये क्या करेगा? इसको बैलेंस कर देगा. सो रिमेंबर कि अगर इस पर्टिकुलर मीटर रूल को आपको बैलेंस करना है तो आपको ये फलक्रम जो है, बैलेंसिंग पॉइंट हमेशा मिडिल पे रखना है. सो दिस मास, द होल मास वेयर इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स मिडल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास. ठीक है, उसको सेंटर ऑफ मास भी कहेंगे. एंड हेयर इट इज ऑल्सो, क्योंकि ये वेट भी इस पे एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी भी एक्ट कर रहा है, तो इसको आप और से कह सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी. विल लर्न अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन अवर लास्ट लेक्चर. ठीक है, उसमें पढ़ेंगे. अभी आपको देखिए क्या होता क्या है. ठीक है, सपोज मैं एक फलक्रम पॉइंट ले लेता हूं एंड आई विल ट्राई टू बैलेंस इट. आई विल ट्राई टू बैलेंस दिस ऑब्जेक्ट. ये देखो, ये बैलेंस हो गया. ठीक है, नाउ दैट मीन्स कि इसका मास, सेंटर ऑफ मास इसके मिडल पे है. ठीक है, और इट इज बैलेंस्ड बाय फलक्रम. ठीक है, फलक्रम अपना रिएक्शन ऊपर लगा रहा है और ये अपना वेट नीचे लगा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज बैलेंस्ड नाउ. ठीक है, अभी क्या होगा? इतने पोर्शन की वजह से जो वेट इसको नीचे खींच रहा था और इसका क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स और इसका एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला पोर्शन का एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, ये दोनों इसको बैलेंस कर रहे हैं. ठीक है, तो राइट नाउ इट इज, सो दैट्स व्हाई द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन, द नेट मोमेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी इज 0. इस पे नेट मोमेंट ऑफ फोर्स 0 है. ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पे वेट अप्लाई कर देता हूं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, लाइक एज यू कैन सी इन द पीडीएफ, 20 ग्राम फोर्स मैं अप्लाई करता हूं. ठीक है, ये वेट यहाँ पे लगाता हूं 20 ग्राम का, तो ये रोटेट कर जाएगा. क्यों? क्योंकि अर्लियर इट वाज बैलेंस्ड. ठीक है, एक एक्स्ट्रा मोमेंट ऑफ फोर्स इस पे प्रोड्यूस हुआ, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंड इट विल रोटेट द बॉडी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ऐसे रोटेट करने लग जाएगा. सो हमेशा याद रखना, पहले तो बैलेंस था, कोई मोमेंट ऑफ फोर्स 0 था बॉडी पे. ठीक है, जैसे ही मोमेंट ऑफ फोर्स इसमें लगेगा तो दैट मीन्स कि इट विल रोटेट. एज यू कैन सी इन दिस पीडीएफ, वी हैव अटैच्ड अ ब्लॉक ऑफ 20 ग्राम on one particular end. Earlier it was balanced. ठीक है, तो अब क्या होगा? इसमें एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होगा एंड इट इज इक्वल टू R इंटू 20 ग्राम फोर्स. ठीक है, इतने इसके बराबर है. एंड ऑल्सो यू कैन सी द एग्जाम्पल, इफ द मीटर रूल विच इज हैविंग नो मास, अभी हम चलो मीटर रूल का कोई मास नहीं लेते, इज शोन विद अ वेट अप्लाइड ऑन इट. 20 ग्राम, देखो 20 सेंटीमीटर पे एक 30 ग्राम का फोर्स आपने यहाँ पे अप्लाई किया है, 30 ग्राम का एक ब्लॉक रख दिया है. ठीक है, एंड इट वॉज balanced at fulcrum point which is at 50 centimeter. Find the direction of rotation. ठीक है, एक राइट हैंड साइड पे आपने 40 ग्राम अप्लाई किया 70 सेंटीमीटर मार्क पे, तो इसका रोटेशन पॉइंट से 40 ग्राम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 70 माइनस 50. ये मीटर रूल पे आपने यहाँ पे रखा है इसको. ठीक है, तो 70 माइनस 50 कितना होता है? 20. तो 40 ग्राम का मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा? 40 इंटू 20, दैट इज 800 ग्राम 4 सेंटीमीटर, एंड इट इज क्लॉकवाइज. ये क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करेगा विच इज ऑल्सो नेगेटिव. ठीक है, तो क्लॉकवाइज हमेशा, हमें अर्लियर भी पढ़ा है कि क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स नेगेटिव होता है. ओके,
Okay, now let's talk about 30 gram force. ठीक है, 30 gram force will produce a moment of force. The moment of force of 30 gram force is 30 into perpendicular distance. What is it? 50 minus 20. ये इसका perpendicular distance हो जाएगा यहाँ से. ठीक है, so you will get that is 900 gram force you will get. ठीक है, so moment of force of 30 gram is 900 gram force and it is anti clockwise क्योंकि इसको ऐसे anti clockwise rotation produce करेगा. Again 900 gram force, this anti clockwise rotation is greater than clockwise rotation. तो net moment of force कितना हो जाएगा भाई? So obviously this whole block will rotate anti-clockwise. So the moment of force of 30 gram is greater than the moment of force of 40 gram. Then the meter rule will rotate anti-clockwise. So इसका moment of force ज़्यादा है, इसलिए anti-clockwise rotation होगा. So आपको पता होना चाहिए कि एक particular body पे अगर net moment of force आता है तो then it will rotate, otherwise it won't rotate. ठीक है, अगर net moment of force इस पे 0 है, ठीक है, तो ये rotate नहीं करेगा. ठीक है, अगर 0 है तो अगर ये पहले से रोटेट नहीं करता तो रोटेट नहीं करेगा बाद में भी. ठीक है, अब हम एक चीज और पढ़ते हैं कि अगर मान लो टोटल नेट फोर्स किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पे 0 रहेगा. ठीक है, सो अर्लियर भी हम पढ़ चुके हैं कि दैट बॉडी कैन बी इन अ यूनिफॉर्म मोशन, या वो रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा. दैट कॉन्सेप्ट विल डू इन इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट. सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज इक्विलिब्रियम. ओके, equilibrium if the force produce no change in its state of rest or motion. ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी पे अगर फोर्स लगता है उसके रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को वो चेंज नहीं करता है, सो वी से दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. ठीक है, सो अगर किसी सो दैट मीन्स कि उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए ना, तो क्योंकि फोर्स तो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है. ऑल्दो बॉडी पे फोर्स लगेंगे बट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी इज 0. सपोज करो देखो एंड इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ले लो आप इस पे इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगाओ तो इधर मूव कर जाएगा. ठीक है, सो इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, सो दैट मीन्स कि फोर्स विल चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट. ठीक है, रेस्ट के स्टेट को चेंज कर देगा. ठीक है, अगर सेम फोर्स मैं इधर से भी लगाऊं, अप्लाई करूं, सो नाउ इट वॉन्ट मूव of the same magnitude. ठीक है, so in this particular case the body is said to be in equilibrium. ठीक है, और कौन से इक्विलिब्रियम में? वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है. क्यों? स्टैटिक का मतलब रेस्ट में रहना. ठीक है, डायनेमिक का मतलब मोशन में रहना. अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा. As you can see in this PDF, the equilibrium can be of two types: static equilibrium and dynamic equilibrium. What does it mean? Static means the force is applied but body remains at rest, as net force acting on the body is 0. 10 न्यूटन लगा फोर्स इस पर्टिकुलर बॉडी से टुवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट, इट वॉन्ट मूव. ठीक है, सो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है. ठीक है, अगेन अगर बॉडी रोटेशन इट कैन ऑल्सो बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम. वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी रह सकता है. मतलब अभी तो ये किसने था? रेस्ट में था. ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में था एंड रेस्ट में था. अगर वो net moment of force acting on in the body is also 0, अगर net moment of force भी उस पर 0 है total acting, so that means कि वो रोटेट नहीं कर रहा था इनिशियली तो वो बाद में भी रोटेट नहीं करेगा. जैसे कि देखो सेम है आप इस पर्टिकुलर बॉडी पे. ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस पीडीएफ में भी देख सकते हो एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं. ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, ऊपर से आप 10 न्यूटन लगाओ, इधर से भी आप 10 न्यूटन लगाओ. ठीक है, अभी बैलेंस था, इधर से 10 न्यूटन लगाया, इधर से भी 10 न्यूटन लगाया, तो क्या होगा? जैसे ही मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूँ दोनों पे फोर्स, ठीक है, इट वॉन्ट मूव. जो जैसे पहले भी although I'm applying force but it is not moving. Earlier also it was not moving, now also it won't move. So that means the net moment of force acting on this particular body is 0. 10 न्यूटन का फोर्स. ठीक है, 10 न्यूटन का मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है? 10 into 50 कितना हो गया? एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, एंड ये 50 अगेन इधर वाले का 10 न्यूटन का फोर्स कितना हो गया? 10 into 50. सो दैट मीन्स अगेन इट इज क्लॉकवाइज. तो इन दोनों का नेट मोमेंट ऑफ फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे. सो एंड नेट मोमेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी 0. सो दैट्स व्हाई इट वोंट मूव. तो ये भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहेगा. ठीक है, और यू कैन से दैट कि ये रोटेशन ऑल्दो इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है बट स्टिल ये रोटेट नहीं करेगा. ठीक है,
ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई? डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। ठीक है, अगर वो पहले से ही मूव कर रहा है तो अभी भी मूव करता रहेगा। ठीक है, मोशन, द मूव्स विद अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, दैट मीन्स द मोशन ऑफ अ बॉडी इन आउटर स्पेस। अगर ये पर्टिकुलर बॉडी अगर आउटर स्पेस में होता और इसका कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो ये मूव करता ही चला जाता है। ठीक है, ऑल्दो इस पे नेट फोर्स एक्टिंग इज जीरो। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम का मतलब कि इसमें नेट फोर्स जीरो लगेगा। ठीक है, और अगर रोटेशन की बात करें तो नेट मोमेंटम फोर्स इस पे जीरो रहेगा हमेशा। ठीक है, सो अगर ये रोटेट मोशन में है तो ये मोशन में ही रहेगा। ऑल्दो आप इधर से फोर्स लगाओ, दोनों तरफ से फोर्स लगाओ, ये पहले ही इधर से भी 10 न्यूटन, इधर से भी 10 न्यूटन। अब ये 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रहा था तो उसी स्पीड से आगे जाता चला जाएगा। ऑल्दो द नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी, बट स्टिल दैट फोर्स, नेट फोर्स इज जीरो। ठीक है, सो अगर वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से तो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता चला जाएगा। ठीक है, सेम इज अ केस ऑफ रोटेशन ऑल्सो। अगर बॉडी पे नेट मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो है तो अगर तो दैट मीन्स कि मोमेंट ऑफ फोर्स अगर उस बॉडी पे पहले अगर वो रोटेशन में था तो वो रोटेशन में ही रहेगा बाद में भी। ठीक है, ऑल्दो उस पर मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो है। ठीक है, बट अगर वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। लाइक मोशन रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ इज कंटिन्यूअसली रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है इन स्पेस। ठीक है, तो उस पे अर्थ पे एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा कुछ अभी फिलहाल एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लग रहा कुछ। ठीक है, उस पर एक किसी भी पर्टिकुलर प्लैनेट का ले लो। ठीक है, अगर इफ इट इज कंटिन्यूअसली रोटेटिंग इन आउटर स्पेस, ठीक है, सो उस पे नेट फोर्स बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर उस पे तो कंटिन्यूअसली रोटेट करता ही चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट equilibrium. Equilibrium means the net force cannot change any state of rest or uniform motion of that particular body, or it cannot change the rotational equilibrium of that particular body. ठीक है, वो कांस्टेंट स्पीड से रोटेशन कर रहा है तो रोटेट करता ही रहेगा कांस्टेंट स्पीड से, ना तो इसका रोटेशनल स्पीड बढ़ेगा या ना ही रोटेशनल स्पीड घटेगा। ठीक है, तो आप दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसी से आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो वी हैव डिस्कस्ड। Now let us discuss about equilibrium. Now discuss about what are the conditions. Condition वही सेम चीज है आपका जो हम अभी पढ़े थे। ठीक है, condition of equilibrium is the resultant of all the force acting on the body should be zero. So that's why it may be in translational equilibrium. मतलब कि वही जो आपको पहले बताया था, इधर से भी फोर्स लगो, इधर से भी फोर्स लगाओ, रेस्ट में तो रेस्ट में, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में। ट्रांसलेट कर रहा है वो। ट्रांसलेशन ऑफ मोशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दैट मीन्स कि वो पैरेलली मूव करेगा, बॉडी मूव्स पैरेलल टू इटसेल्फ। इसका अगर मोशन इधर जा रहा है तो ईच एंड एवरी पोर्शन ऑफ दिस बॉडी विल मूव पैरेलल टू इटसेल्फ। अगर वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो रोटेट करता ही चला जाएगा। रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ all the forces acting on the body should be zero. ठीक है, so that's why the body can be in rotational equilibrium. अगर रोटेट कर रहा है तो रोटेट करता ही रहेगा। ठीक है, now let us discuss about what is principle of momentum. ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है? According to the principle of momentum of equilibrium, sum of anti-clockwise moment of force must be equal to sum of clockwise moment of force. So देखो सेम चीज, अगर मान लो ये बॉडी पे 80 ग्राम 10 सेंटीमीटर पे 80 ग्राम फोर्स लग रहा है और यहाँ पे एक्सट्रीम एंड पे W वेट क्या लगाएं ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, आपने फल्क्रम, ठीक है, ये आपने लगा दिया है, दिस इज द फल्क्रम आपने लगाया है 30 सेंटीमीटर मार्क पे। ठीक है, सो अब देखिए ये 30 सेंटीमीटर मार्क पे फल्क्रम लगाया था, 80 ग्राम फोर्स इधर है, इधर से क्या ये W वेट लगाएं यहाँ पे हम अटैच करें। ठीक है, 100 एक्सट्रीम एंड पे ताकि ये इसको बैलेंस कर जाए। तो देखिए इसका मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होता है? 80 into 20। ठीक है, क्योंकि 30 minus 10 is its perpendicular distance from this axis of rotation. So you will get 80 into 20 must be equal to 70 into W. इसका क्लॉकवाइज और इसका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स दोनों बराबर होना चाहिए क्योंकि ये रोटेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे, you will get the weight which is 160/7 ग्राम। ठीक है, so now let us discuss two numerical first. ठीक है, दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम। Let us discuss this first numerical. A uniform meter rule of mass 100 gram is balanced on a fulcrum at mark 40 centimeter by suspending a unknown mass m at the mark 20 centimeter. So find the value of m. ठीक है, तो आप एक मीटर रूल लिया है आपने जिसका मास कितना है भाई 100 ग्राम। तो ऑब्वियसली मीटर रूल आपने लिया है जिसका मास 100 ग्राम है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिडिल पे होगा। ठीक है, हमेशा मिडिल पे रहेगा, वही इसका बैलेंसिंग पॉइंट भी होगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, एंड आपने क्या किया है, एंड इट इज बैलेंस्ड बाय फल्क्रम
एंड इज बैलेंस्ड ऑन अ फल्क्रम एट मार्क 40 सेंटीमीटर पे मार्क किया हुआ है, मतलब मीन्स फल्क्रम आप 50 पे नहीं है, 40 सेंटीमीटर पे है, बाय सस्पेंडिंग एन अननोन मास m एट द मार्क 20 सेंटीमीटर। तो पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। एज यू कैन सी in this particular diagram, here we have applied 20 centimeter mark we have applied a mass m, ठीक है। अब ये 40 ग्राम पे सस्पेंडेड है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, ठीक है, 40 ग्राम पे 40 सेंटीमीटर पे सस्पेंडेड है, तो मीटर रूल का जो 100 ग्राम का है, इतना पोर्शन ज़्यादा भारी है, इतने वो पोर्शन की वजह से, तो ऑब्वियसली बात मास आप इधर रखोगे ताकि इसको बैलेंस कर सकें, ठीक है। सो हमने रखा 20 सेंटीमीटर पे मार्क पे रखा हुआ था, ठीक है, इसको रखा है, ठीक है। तो आपको पूछा है मास कितना होना चाहिए, ये सस्पेंडेड मास, ताकि इसको आप बैलेंस कर सको। हमें पता है the center of gravity or center of mass of that particular meter rule is at about middle, that is 50 सेंटीमीटर पे रखा है ना, 50 सेंटीमीटर पे होता है। अगर ये सपोज करो 40 पे है, तो ऑब्वियसली बात है ये नीचे जाना चाहेगा, 40 पे है तो देखो ये नीचे जा रहा है, रोटेट कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रोटेट करेगा। 50 पे होता तो ये बैलेंस हो जाता, ये इधर है 40 पे, तो ये इधर जाना चाहेगा, रोटेट करना चाहेगा इधर से। क्यों? क्योंकि इसका होल मास इसके मिडल पे कॉन्सेंट्रेटेड है 50 सेंटीमीटर पे, तो 100 ग्राम फोर्स से ये नीचे खींचेगा इसको, ठीक है। तो आप फोर्स जो कितना आप मास रखोगे इधर इस 20 सेंटीमीटर पे, ताकि इसको बैलेंस कर जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसलिए आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन पे आपको मास रखना पड़ेगा, एंड विच इज इक्वल टू कितना ग्राम का होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। सो इसका इस वाले का मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, और इस पर्टिकुलर वेट का मोमेंट ऑफ फोर्स दोनों को बैलेंस करना है आपको, ठीक है। सो एज यू कैन सी इन दिस पीडीएफ, दिस m ग्राम मास विल प्रोड्यूस अ मोमेंट ऑफ फोर्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये मीटर रूल का मास प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। और दोनों इक्वल होना चाहिए क्योंकि बैलेंस करना है इसको, तो कर दो 40 minus 20 is a perpendicular distance, 20 into m, this is a moment of force of m mass, small m mass, and the moment of force of दिस मीटर रूल का मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है 50 माइनस 40, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका इस पर्टिकुलर एक्सिस से 50 माइनस 10 40 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 10 सेंटीमीटर इंटू 100 कर देंगे, दिस इज 100, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। सॉल्विंग दीज टू विल यू विल गेट m इज इक्वल टू 50 ग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब मास 50 ग्राम होना चाहिए ताकि इसको बैलेंस कर जाए, ठीक है। सो मास तो निकल गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट। सेकंड they are asking to which side on the rule will tilt if the mass m is moved to mark 10 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स कि अब ये 50 ग्राम वाला मास 20 पे था, तो अब इसको 10 पे ले जाएं, हम 10 पे ले जाएं तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया, तो ऑब्वियसली बात है अब ये इधर टिल्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो 20 ग्राम वाला जो वेट आपने रखा था इसको और इधर ले जाओ, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है, तो ये इधर टिल्ट करेगा ना, ऑब्वियसली बात है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया तो इस तरफ टिल्ट करेगा ये, क्योंकि पहले तो ये इक्विलिब्रियम में था, ठीक है। तो ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है। सो नाउ इट विल टिल्ट टुवर्ड्स 50 ग्राम फोर्स, ठीक है। और कितने से व्हाट शुड बी द नेट मोमेंट ऑफ फोर्स, देखो अर्लियर देखो द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, ये 10 सेंटीमीटर पे रख दिया, तो 40 माइनस 10 करेंगे तो 30, तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स 50 ग्राम का कितना हो जाएगा 1500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, एंड द क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ मीटर रूल इज 100 ग्राम फोर्स का मोमेंट ऑफ रूल कितना हो जाएगा, ये तो पहले से ही वही था 100 इंटू 50 माइनस 40 कितना था 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, ठीक है। सो इतना था, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा है इस वाले से, तो इधर रोटेट करेगा, ठीक है। सो द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इज ग्रेटर देन द क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, सो द मीटर रूल विल टिल्ट एंटी क्लॉकवाइज विद फोर्स 1500 माइनस 1000, दैट इज 500 ग्राम फोर्स, ठीक है। तो इधर टिल्ट करेगा, ओके। सो इसी क्वेश्चन में आपको और क्या पूछा है, हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड बाय अनदर मास ऑफ 50 ग्राम। तो ऑब्वियसली बात है ये इस तरफ टिल्ट कर रहा था, ठीक है, तो आप इधर फोर्स लगाओगे 50 ग्राम वाला आप इधर ही लगाओगे ना, ताकि इसको बैलेंस कर जाए। और वो कितने डिस्टेंस पे लगाना है इस पर्टिकुलर फल्क्रम पॉइंट से, लेट इट बी x, ठीक है। तो इस लेट इट बी x, ठीक है। तो आप देखो नाउ दिस द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 50 ग्राम फोर्स इज 50 into 30, दैट इज 1500,
ओके इसका इधर राइट हैंड साइड वाले का मोमेंटम फोर्स कितना होगा 50 इंटू एक्स, ठीक है, और 500 और 100 ग्राम इंटू 50 माइनस 40 10 1000, ठीक है, तो यूल गेट x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई। तो x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर का मतलब 40 से टुवर्ड्स राइट हमें 10 सेंटीमीटर पे रखना है। तो दैट मीन्स कि आप इसको 50 सेंटीमीटर मार्क पे ही ये 50 ग्राम वाला फोर्स भी रखोगे, ठीक है, तभी ये बैलेंस करेगा, ठीक है। सो द मास 50 ग्राम विल बी सस्पेंडेड एट 50 सेंटीमीटर मार्क, ठीक है। तो लाइकवाइज आप इजीली पता कर सकते हैं, आपको एक चीज पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में पता होना चाहिए, बैलेंसिंग के बारे में पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन इजीली एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। लेट अस डिस्कस द सेकंड न्यूमेरिकल नाउ। सेकंड न्यूमेरिकल क्या कहता है, इन द गिवन फिगर यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ L मीटर is supported at its end and loaded by a weight W kilogram force at its middle। एक रॉड है L लेंथ का है, ठीक है, इसको मिडिल पे आपने क्या रखा है, वेट लगाया है W, ठीक है, वेट लगा दिया। इन इक्विलिब्रियम फाइंड द रिएक्शन R1 एंड R2 एट द एंड। अगेन आपने एंड पे इसके फलक्रम लगाया है, ठीक है, ये नीचे जाना चाहेगा बट ये नीचे नहीं जा पाएगी, ये नीचे जाना चाहेगा अपने वेट से बट ये नीचे नहीं जाने देंगे, ये दोनों फलक्रम पॉइंट्स इसको नीचे नहीं जाने देंगे, ठीक है। सो दीज टू वॉन्ट मेक, सो द वेट इज बैलेंस्ड बाय द अपवर्ड रिएक्शन R1 एंड R2, ठीक है। जो मैं हैंड, इफ माई हैंड इज अप्लाइंग द फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, दीज टू फोर्सेस मस्ट बैलेंस्ड द वेट of this particular rod which is of length L, ठीक है। So again let us discuss the solution now। देखो, so the net, if it is balanced, so the net force is 0 as the system does not move। तो R1 और R2 W के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और the if it is also not rotating नहीं हो रहा, तो rotation नहीं हो रहा, so the net rotation of the net moment of force is also 0, ठीक है। So the clockwise torque of R1 का टॉर्क कितना होगा, R1 इंटू L बाई 2, बिकॉज वेट से जहाँ पे वेट लग रहा है वहां से इसका डिस्टेंस कितना है, L बाई 2 है, तो R1 इंटू L बाई 2 विच इज अ क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इज बैलेंस्ड बाय दिस इज R2 इंटू L बाई 2, ठीक है। ये दोनों हम बैलेंस कर लेंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये यहाँ पे दिस इज R2 नॉट R1, ठीक है। सो R2 इंटू L बाई 2, सो यूल गेट R1 इज इक्वल टू R2, दोनों ये इक्वल होने चाहिए, R1 और R2 के बराबर होने चाहिए, एंड द R1 R2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, सो यूल गेट ट्वाइस ऑफ R1, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ R1 इज इक्वल टू W, सो R1 W बाई 2 के बराबर होना चाहिए, एंड R2 भी W बाई 2 के बराबर होना चाहिए, बिकॉज R1 एंड R2 आर इक्वल है, ठीक है। So as of now we have discussed about the numericals portion of this particular chapter also, ठीक है। So in next session we'll learn about center of gravity of different objects, ठीक है, and eventually we'll learn about circular motion also, okay। Thank you।